हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिया देवघर आईएएस एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज भी मैं डीएनएफ में जो मेजर हेडलाइंस हैं, वॉट एवर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द न्यूज आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, और जो इसमें एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं कि क्या पढ़ना है आपको, दैट पार्ट आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ अगेन देयर। सो नाउ लेट्स लुक एट हियर फर्स्ट मेजर हेडलाइन which I want to bring here is from World Chess Championship. Gukesh, right? Proud moment for India. Vishwanath Anand, and now youngest chess champion, World Chess Championship. He defeated Chinese chess player that was defeated by D. Gukesh. This is a proud moment for him. He is the youngest, just 18 years of age. 18 साल के आयु का विश्व चेस चैंपियन जो है वो भारतीय डी गुकेश है, राइट? दिस इज द मेजर हेडलाइन टुडे। तो 18 year old फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई beats Ding Liren of China. Ding Liren of China in the final game breaks the record held by the Russian Garry Kasparov. Right, very famous chess champion Garry Kasparov. He broken the record of that for nearly 4 decades. Garry Kasparov remained as a champion for 40 years. So that record was broken. The game was heading towards a draw. It was going towards a draw between the Chinese player and the Indian player until Ding made a fatal error, right, with his rook. Gukesh is also only the 18th world champion in history. This was the first world championship final between Asians. एक और चीज है कि पहली बार एशियंस का जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों एशियन जो है पहली बार हुआ, और 18 वर्ष के आयु में। दैट इज व्हाट गुकेश हैज कम इनटू दैट। तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन हियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत से हम लोग कई चीजों पे डिस्कशन करते जाएंगे। तो पहला तो ये चीज था, तो ये डीएनएफ हम लोग टेलीग्राम में शेयर कर रहे। नाउ सोलर पावर एनर्जी। नाउ दिस न्यूज इज फ्रॉम यूएसए, अमेरिका। नाउ इन सोलर पावर अमेरिका होल्ड्स रैंक 2 आफ्टर चाइना. China is rank 1, then US, then Japan, Germany, and the 5th is India worldwide. So in now Donald Trump, the new president who has joined the party and the power and the government, has now looking for alternative solar power sources of energy there. So here US solar lobby, industrial lobbies, they are calling for action against climate change during this type of kind of the Paris agreement and the kind of climate change agenda worldwide, and America being the highest emitter of greenhouse gas. So now going for solar power. So that lobbying by the industry, solar power industry sector in America to their president. That is what this news is all about. So incoming Trump administration on Thursday promoting the domestic jobs and growth engine in US. So in terms of solar power, because this is not only from economic point of view but also from environment point of view. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पर इस पे ये आर्टिकल आया हुआ। अब ये चीज है अगेन अमेरिकन न्यूज, right? Former President Joe Biden and his son impeachment, and not only impeachment here, pardoning, and now the question comes conflict of interest. Can a president pardon his own son? Now that is where the article is all about. Should the executive power of clemency rest with the legislature to avoid misuse? Misuse of that legislative power is a very classic case in case of American democracy. That is what is given here. Joe Biden with his son Hunter Biden at the Democratic National Convention in Chicago, Illinois. है ना, वहां पर ये चीज है। तो उस पे डिस्कशन दिया हुआ है, which you can read from that perspective. Now coming to price worries, inflation. Recently RBI governor, the former governor, right, Mr. Kanta, he announced for again the cut like repo rate and all this one to control inflation with the respect of the growth. But cutting such kind of repo rate and all this is not a long-term solution, is elusive.
यहाँ पे यही कहा गया कि महंगाई को हम लगाम लगाने के लिए जो इस तरह के जो तरीकों को अपनाते हैं, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है कि हम रेपो रेट वगैरह जब रिड्यूस करते हैं, ये सारी चीजें, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इससे इन्फ्लेशन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा या कम कंट्रोल नहीं होगा। तो उस पर यह एडिटोरियल है कि वेजिटेबल्स का प्राइस या बाकी जो इतने भी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड और पर्सन का है वो बढ़ता ही जा रहा है, जबकि लगातार आरबीआई ने है ना रेट कट करने के बावजूद भी, है ना, बढ़ाने के बावजूद भी, रेपो रेट वगैरह जरूर पर जो, तब भी उसके बावजूद भी महंगाई उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दैट इज फ्रॉम इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसके पॉइंट पे दिया हुआ है। तो ये एडिटोरियल पेज में है। फिर अनदर वन, द मिसिंग स्पॉटलाइट ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट पोल्स। अभी क्या न्यूज में है, गवर्नमेंट इज पासिंग अ बिल कि साइमल्टेनियसली है ना पोल्स कराए जा सकते हैं, है ना, कि इसके लिए है ना लोकसभा में जो बिल लाया जा रहा है उसके लेके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारे इसमें मतभेद है, डिबेट इज गोइंग ऑन। अब यहाँ क्वेश्चन है कि अर्बन लोकल बॉडीज और उसका साइमल्टेनियस पोल्स, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कशन है। दैट मीन्स 74th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस और व्हाट इज कॉल्ड लोकल गवर्नेंस। तो वहां उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर है कि 30 साल से ऊपर हो गए सारा चीज, अभी भी हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और आज भी जो इलेक्शन और प्रोसेस, जो पोल प्रोसेस है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट वगैरह से नहीं हो पाया। तो दैट इज व्हाट 79th रिपोर्ट पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में दिया हुआ है कि कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, उस पर रिपोर्ट आई हुई है। दैट इज व्हाट सबमिटेड 2015। तो अब गवर्नमेंट वांटेड टू ब्रिंग अ बिल ऑन दिस। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर है गुकेश का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये चीज़ है। ये जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस में कई पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ये किया है। दैट इज ये चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पर जो है साइमल्टेनियस पोल्स गेम, यूनियन कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर बिल्स ऑन साइमल्टेनियस पोल्स, है ना, मूव्स पेव वे टू इंट्रोड्यूस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट। तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल CMs, chief ministers, term it as an attack on democracy and federalism. इसी कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल आर्टिकल भी आया हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन रीड देयर। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब जो है लोकसभा प्रोसीडिंग्स जो है नाउ लाइव ऑन यूट्यूब चैनल इन इंग्लिश एंड हिंदी, उसका लाइव होगा, पीपल कैन वॉच इन यूट्यूब चैनल लोकसभा प्रोसीडिंग्स। तो दैट इज व्हाट पीपल डू, दैट इज व्हाट गिवन देयर। Now I've got into this. Now another very important thing, health. What is disease X and why the world should prepare for it? अभी हाल ही में अफ्रीका में 400 लोगों से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं एक ऐसे रोग जिसका नाम डिजीज X दिया गया है WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन द नेम डिजीज X। मतलब अभी उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। X मतलब हो गया जहां उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। दैट मीन्स नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पैथोजन इज अवेलेबल राइट नाउ एंड WHO एंड द साइंटिस्ट आर लुकिंग इनटू दैट, बट इट इज अ वेरी कंटेजियस, है ना, काफी संक्रमित रोग है और ये बहुत तेजी से फैलता है। और WHO ये वार्निंग दे रहा है कि अगर इसको नहीं कंट्रोल किए तो ये केवल एपिडेमिक नहीं पेंडेमिक का भी शक्ल ले सकता है, जैसे कोविड-19 का हुआ। जस्ट लाइक यू नो SARS-CoV-2, दैट इज अ कोविड-19 pandemic was that this disease X can spread all over the world. That is what is given here. December 2024, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo in Africa, and more than 400 people have died because of this disease X. ठीक है, डिजीज X जो है ये हाइपोथेटिकल डिजीज है जो को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ड को टर्म किया 2018 में, एक डिजीज X नाम का टर्म को यूज किया गया 2018 में कि जो ऐसे अननोन पैथोजन जो अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, वायरस, व्हाटएवर, तो उसके बारे में कि जो डिवास्टेटिंग एपिडेमिक एंड पेंडेमिक कर सकते हैं उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दैट इज व्हाट द ये दिया हुआ है, दैट इज वेयर द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ WHO और डिजीज X, और उसको सर्वेलेंस मोड पे रखा गया। दैट इज व्हाट द आर्टिकल हैज कम। फिर यहां पर जो मैंने बताया अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। नाउ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा पासेस बिल टू अमेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। भारत में आप सबको पता है कि आज आपदा प्रबंधन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो भी नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं एंड इवन द मैन मेड डिजास्टर,
है ना, मानव जनित जो भी ऐसे आपदाएं हैं उनके संदर्भ में, उसके प्रबंधन के संदर्भ में, क्राइसिस मैनेजमेंट के संदर्भ में हमारे पास डीएम एक्ट है 2005, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। और आपको पता है कि एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इस एक्ट में बदलाव किया गया है, जहां पर किया गया कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं ऑल ओवर द कंट्री एंड द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन विल हेल्प स्टेट गवर्नमेंट डील विद डिजास्टर बेटर। यानी कि इस अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट, राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढ़ किया जा रहा है, मेकिंग मोर स्ट्रेंथन दिस एसडीएमए so that the state government will be better to control any kind of calamity, crisis, emergency, disaster in the state. तो उसको better करने के लिए, to make it more better in terms of handling such disasters, emergencies at the state level, state disaster management authority being strengthened through this amendment. That is what is there. So 2024 this was done with voice vote, so that is given here. Would not only overcome them and strengthen this stakeholders. तो ये चीज़ है यहाँ पर इस पे काफ़ी सारे ये चीज़ों पे बदलाव जो लाया गया, तो इसके प्रोविजंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो केवल हेडलाइन के तौर पे यहाँ पे, सो फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कनेक्ट करना डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, यू हैव टू कनेक्ट विद द डिजास्टर मैनेजमेंट देयर। सो हियर नाउ अनदर, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ सीज फायर इन गाजा, वर्ल्ड अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, Gaza Strip, Israel-Palestine conflict, and now the ceasefire in Gaza. तो इंडिया ने उसका समर्थन किया है। तो दैट इज वेयर दिस न्यूज हैज कम कि इंडिया और वेडनेसडे वोटेड ऑन इन अ फेवर ऑफ यूएन रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो आम महासभा है संयुक्त राष्ट्र के, वहां पर रेजोल्यूशन प्रस्तावना पारित किया गया, उसमें भारत ने समर्थन दिया है इस सीज फायर का। दैट इज अ सीज फायर ऑन गाजा स्ट्रिप एंड डिमांड फॉर अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस, जो होस्टेजेस किया गया उसको छोड़ा जाए। उसके लिए यहाँ पर 193 मेंबर ऑफ यूएन जनरल असेंबली हैज पास द रेजोल्यूशन। तो ये चीज 158 कंट्री ने सपोर्ट किया है वहां पर। नाउ ये चीज है। अनदर वन, सेंटर इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग कंट्रीज हेरिटेज, सेज शेखावत। इंडिया इज मेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्राइड्स इन टूरिज्म, पर्यटन के क्षेत्र में है ना, हम काफी इस पे तरक्की कर रहे हैं। तो कल्चर मिनिस्टर जो है, ठीक है, slamming those who have a problem with pace and scale development, says कुंभ मेला है ना, प्रयागराज कुंभ मेला विल बी शोकेस्ड एज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ कल्चर अक्रॉस द कंट्री। जो अभी कुंभ मेला होता है, जहां बड़े पैमाने में ये मेला होता है, उसके लिए जो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया एंड काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफरेंट थिंग, इसके लिए या कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत का वहां पर स्टेटमेंट आया हुआ कि कमिटेड टू प्रोटेक्ट कंट्रीज हेरिटेज, हमारे जो राष्ट्र की जो धरोहर है उसका हमें सुरक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट हियर। तो यहाँ पे विकसित भारत के तौर पे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो दैट यू कैन लिंक विद द आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज एंड ऑल्सो tourism as a part of economic development. That where the infrastructure development and all this to promote tourism that is given. Now RTI award for Kerala for exemplary performance. अगर हम गवर्नेंस की बात करें, राज्य की बात करें, तो केरला राज्य को पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया ट्रांसपेरेंसी को लेकर, अकाउंटेबिलिटी को लेकर और प्रॉपर गवर्नेंस को लेकर। तो व्हाट इज हियर आर्टिकल, केरला हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर इन ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कहां से है, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया के द्वारा आया हुआ कि अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें और RTI जो होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, गिविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एंड टाइमली एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसके कॉन्टेक्स्ट में CIC का यहां पर आया हुआ है। केरला हैज बीन रैंक 1, केरला स्टेट। तो नेशनल RTI अवार्ड सेरेमनी, RTI अवार्ड सेरेमनी वेयर केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर AA हकीम, जो वहां स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, दैट वाज प्रेजेंटेड विद द अवार्ड, RTI अवार्ड फॉर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू पब्लिक एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो उसके लिए एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, नाउ इन ब्रीफ में अगर जाए तो दिल्ली इज अगेन गैस्पिंग विथ पोल्यूशन, स्मॉग, राइट, दिल्ली स्मॉग, विंटर स्मॉग। तो नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट ग्रैप 2 विल कंटिन्यू विथ दिल्ली। सो यहाँ पर ये ग्रैप 2 कैन कंटिन्यू इन दिल्ली, NCR है ना,
for now Supreme Court has given that. Now GRAP stands for Graded Response Action Plan. Depending on severity of AQI, Air Quality Index, which indication of hazardous air pollutant, air quality of the environment and the level of pollution, gases and particulate matter. तो वहाँ पर different types of action plans are taken by the government, Delhi government. So GRAP 2 will still continue. मतलब हो सकता है अभी बारिश हुई दिल्ली में, थोड़ा मौसम साफ हो गया, लेकिन तब भी है ना सुप्रीम को कहना है कि अभी भी हमें एक्शन प्लान रखना है, हमें इसमें कोताही नहीं करना है. दैट इज व्हाट द यहाँ पर है. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ग्रैप क्या है. प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एग्जाम में ग्रैप आ सकता है, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दिल्ली कॉन्टेक्स्ट में, दिल्ली एनसीआर कॉन्टेक्स्ट. दूसरा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 8 गैसेस पोल्यूटेंट्स एंड द पार्ट ऑफ द, ये इन्वायरमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पोल्यूशन एस्पेक्ट, एयर पोल्यूशन, दिल्ली स्मॉग. तो दैट इज व्हाट गिवन हियर. तो CAQMs है ना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, परमिशन टू कंटिन्यू विद दैट. और जैसे जैसे सिचुएशन खराब होगा तो 3 and 4, ग्रैप 3 and 4 कैन बी इम्प्लीमेंटेड. तो अभी ग्रैप 2 में ये होता है कि एंटी पोल्यूशन मेजर्स होते हैं. तो अभी जैसे कहा गया कि जितने भी गवर्नमेंट हैं व्हीकल से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करें, पेट्रोल डीजल से. दैट इज व्हाट हैज बीन नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड देयर. ठीक है. नाउ रिटेल इन्फ्लेशन, जो मैंने बताया कि RBI इज ट्राइंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. तो नाउ रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेट टू 5.5% नवंबर आफ्टर न्यू हाई इन अक्टूबर. तो रिटेल इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी है ना, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जाम बोथ, तो जो बहुत ज्यादा अक्टूबर में था तो अभी थोड़ा कंट्रोल होकर मॉडरेट हुआ है 5.5%. तो यू शुड नो व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम इकोनॉमिक टर्म, एंड देन द RBI मेजर टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, राइट. तो ये डाटा है, दिस वेयर द डाटा इज गिवन देयर. Data gives you an idea कि what is the performance and what is how the economy is going on that. So this is what comes here. So all the information given in National Statistics Office has given this information. And I have mentioned that as I started the class with Gukesh, proud moment for India. So with this we end the DNF, and tomorrow again I will start the DNF there. Till then take care of your health and keep on studying. अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें. हम लोग जल्दी मिलेंगे. ठीक है. धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद. जय भारत.